Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So now we have come very close to the examination, and the some candidates are having exam on 22nd. That is day after tomorrow. So what should be your strategy now? This video is dedicated to candidates those are having exam on 22nd. For all other candidates, we have already posted a video yesterday, and daily I am posting the video. You will follow that schedule. So if you are having exam on February 22nd, you should complete your study by tonight, by midnight. And tomorrow you should take complete rest. And in case you are traveling, your center is outstation, you should complete your traveling tomorrow itself. Avoid traveling on the day of examination because this is mind game. If your mind is fresh, you can perform well. If your mind is tired, you can't apply your brain there, and sometimes you loses the battle by a fraction of marks. So it is always advisable to take proper rest because we are now preparing for say last 3 months, 4 months, 5 months. So already a fatigue is developed. So unless we break this fatigue, unless we break this boredom, unless we break this restlessness, it affects our performance in the examination. And even in one day, you cannot do any wonders. So, whatever you have done is enough. You should have consolation that you have worked very hard. So, the remaining hours of today, you must concentrate on your weak topics. You can attempt one or two more full length mock tests if time permits. Already, you must have done one or two mock tests. You must do and practice through speed drill that will improve your speed as well as accuracy, and focus on the topics wherever you are weak. Try to make more and more weak topics into strong topic, and don't overthink, and don't over diagnose, over analyze. Some people are sending me messages, sir, I am getting this much score in mocks, what is my chance? No one can predict the cutoff. No one can guide you that if you are getting this much score in marks, you will definitely clear the exam or you will not clear the exam. Because that is dependent on various factors, those are not in your hand. If you go to the examination hall, what is the level of exam, you are not aware. And during the examination, what mindset is there, how many questions you are able to attempt, it's unpredictable. Some people they get nervous. Some people they get unnecessarily worried during the exam and they are unable to perform although they have worked very hard. And that's why remain cool, remain calm, remain you can say relaxed before the examination because you have done your work. You can only put in the efforts you have already put in. You can only work hard, you have already worked hard. Now let's have things to emerge in an automatic mode. Whatever is in my fate, that will come. But I have put in my efforts, I have done my karma, I have made my uh, sincere efforts. That is enough. Don't overthink. Don't unnecessarily consult many people about outcome of your performance in coming days. You have done your best. So be relaxed, be cheerful, and go with confidence. God bless you with success. I am with you. God bless you. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एग्जाम है 22 तारीख को और उनके लिए ये मैं वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ. जहाँ तक कैंडिडेट जो 27, 28 और 1 के हैं उनके लिए ऑलरेडी हमने कल वीडियो डाला था और डेली डाल रहे हैं और आज शाम को भी डालेंगे. इसमें सिर्फ मैं उन कैंडिडेट्स के साथ बात कर रहा हूँ जिनका एग्जाम है 22 को, उन्हें क्या करना है. अगर आपका एग्जाम 22 को है तो आज रात तक आपने अपनी पढ़ाई खत्म कर लेनी है और कल कंप्लीट रेस्ट करना है. अगर आपका सेंटर आउट स्टेशन है तो जो भी ट्रैवलिंग करनी है वो कल कल में आप फिनिश कर लीजिए क्योंकि प्रॉपर रेस्ट आपको बहुत मदद देने वाला है. देखो ये गेम है दिमाग की.
ये पूरा का पूरा ब्रेन गेम है। जब हम थके होते हैं, जब हम बिल्कुल परेशान होते हैं, तो हम एग्ज़ाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। हालांकि हमें उन क्वेश्चंस का आंसर आता है, मगर हमारे दिमाग को वो सूझता ही नहीं है। कब सूझता है? जब वो माइंड रिलैक्स होता है, जब वो माइंड बिल्कुल शांत होता है। और अपने मन को शांत करना निहायत ज़रूरी है। और मन कैसे शांत होगा? अगर मैं इसको प्रॉपर रेस्ट दूंगा। अब आप में से कई लोग 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उससे भी अधिक टाइम से पढ़ाई करते आ रहे हैं, निरंतर करते आ रहे हैं। और कई लोग तो अपने को ओवर स्ट्रेच करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो ओवर टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है। उसको सूझता नहीं है ये क्या कर रहा है व्यक्ति मेरे साथ। और ऐसे में कई बार वो हमारा साथ छोड़ देता है जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं। इसीलिए कई लोग कहते हैं, सर मैं एग्जाम में नर्वस हो गया, सर मैं एग्जाम में परेशान हो गया। क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने दिमाग को ओवरबर्डन किया होता है। इसको डीबर्डन करना है। डीबर्डन कैसे होगा? जब हम उसको आराम देंगे, जब हम फजूल की बातों को सोचना छोड़ेंगे, इधर उधर के लोगों से सलाह नहीं करेंगे। कई लोग अभी मेरे को मैसेज देते हैं, सर मेरे मार्क्स में इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा क्लियर हो जाएगा? देखो, ये कोई भी आपको बता ही नहीं सकता है कि क्या कट ऑफ होगा। ये कोई भी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है कि आने वाले टाइम में किस तरह की नॉर्मलाइजेशन होगी, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि असली टेस्ट तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में ही है ना। मॉक टेस्ट तो एक आपका प्रैक्टिस का टूल है, एक माहौल आपको दिया जाता है कि ताकि आप अचानक एग्जाम सेंटर के अंदर घबरा न जाए। ये वो टूल है जिसके जरिए आप अपनी कमियों को ढूंढ रहे हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं। पर उससे पहले की जो आपकी तैयारी है, अपने आप को व्यवस्थित करना, अपने दिमाग को शांत करना, अपने आप को प्रसन्न करना और अपनी ओवर थिंकिंग को छोड़ना, ये सबसे जरूरी है। काफ़ी लोग एग्ज़ाम के आते आते तक परेशान हो जाते हैं। और ये जो परेशानी है जो उनके दिमाग में बिल्डिंग हो जाती है, ये उनको एग्ज़ाम को नुकसान पहुंचाती है। अपने मन को शांत करिए, कम से कम लोगों से बातचीत करिए इन दिनों में। अपने जितना रेस्ट आप कर सकते हैं, जितना अपने दिमाग को सुकून दे सकते हैं, वो दीजिए। अगर दिमाग आपके साथ है एग्जामिनेशन हॉल में, आप वंडर्स कर सकते हैं। और अगर वो थका हुआ है और अगर वो हार के बैठ गया, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दिमाग एक आपके शरीर का ऐसा ऑर्गन है जो आपको नौकरी दिलवा सकता है और जो आपको परेशान भी कर सकता है। इसलिए इसको ओवरबर्डन मत करिए। जितना पढ़ना था पढ़ लिए, एक दिन फालतू पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, आखिरी मिनट तक पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप दिमाग को बोझिल करके जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपका एग्जाम बिगड़ जाता है। कई लोग कहते हैं, सर मैंने बहुत तैयारी करी थी, मैंने तो आखिरी घंटे तक पढ़ाई की थी। यही सबसे बड़ी गलती है। एग्जाम से एक दिन पहले अपने आप को डीबर्डन करना ही करना है। आपने इसको शांत करना है, इसको कूल ऑफ करना है। और जितना रेस्ट लेके आप एग्ज़ाम में जाएंगे, उतना आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है आप अच्छा एग्ज़ाम करके आएंगे और मैं आपके साथ हूँ। आपकी मेहनत आपके साथ है, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।